बताओ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب جتنی چیزیں ہم نے جتنے چیزوں کا تعارف حافظ صاحب نے آپ سے کرائے تھے ان کی وضاحت ایک ایک چیز سے کر لیں گے اور پھر سے ہم لیول 2 میں چلے جائیں گے. حافظ صاحب نے کہا تھا معرفہ اسم کون سے ہیں؟ 7 قسمیں. تو یہاں پہ آپ کے سامنے ایگزامپل کے ساتھ دیکھیے پراپر نام اس میں علم کو اس میں علام ہے. تو پہلا ہے زیدن، مریم، مکہ. یہ رکھے ہوئے نام ہے اور آپ کو کنفرم ہو جائے گا اس میں علم کہتے ہیں. اس میں ضمائر انا یعنی میں، انتا یعنی تو، ہوا یعنی وہ. تو یہ ایگزامپل ہو گئے پروناؤن ضمائر کے. کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کیا ہے. اس میں اشارہ، یہ بولے تو ہاذا، وہ بولے تو ذالکا. یہ بھی ایگزامپل آپ اپنے پاس اسکرین شاٹ لے کے رکھیے. اسکرین شاٹ لینے کی عادت ڈالی. ریلیٹو پروناؤن 2 ہے، الذی وہ جو، اللتی وہ جو، مؤنث. مائک بند کیجیے آپ لوگ، مائک بند کیجیے آپ لوگ مہربانی کر کے. بارش میں فنش 10 دن لگاتار 9 دن. میڈم مائک بند کیجیے مہربانی کر کے. ہاں تو اس میں علم لکھیے الکتاب. تو یہ 5 آپ کے سامنے معرفہ اسموں کی وضاحت کی گئی ہے. ایگزامپل ہے، آپ ایک اسکرین شاٹ لے کے رکھیے. اب ان کا استعمال رفع حالت میں دیکھیے. جملہ اسمیہ بنایا جا رہا ہے. زید صالح، زید ہے ایک نیک بندہ. الولد صالح، ایک خاص لڑکا ہے نیک. ہذا صالح، یہ ہے نیک. ہوا صالح، وہ غائب ایک نیک. تو یہ اسکرین شاٹ بھی لے لیجیے، آپ کو استعمال سمجھ میں آئے گا. یہ 4 معرفہ اسموں کا استعمال جملے میں کیا گیا ہے اور یہ سب کے سب سبجیکٹ فاعل بن کے آ رہے ہیں. اور اگر یہ فاعل بن کے آتے ہیں تو حالت رفع میں ہے. اب نیچے دیکھیے یہ 2 کل جو میں نے آپ کو انٹروڈیوس کیا تھا، اس میں موصولہ جو عبادت کرتا وہی بلیور ہے، وہی ایمان والا ہے. الذی یصلی مؤمن، الذی یہاں پر مبتدا بن رہا ہے اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ الذی جو آ رہا ہے یہ معرفہ اسم ہے اور شروع میں آ رہا ہے اور یہ رفع حالت ہے. نیچے کی آیت کا حصہ پڑھیے. صراط الذین انعمت علیہم، ایسا راستہ. صراط الذین، لذین کا مطلب کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ، ایسے لوگ ان کا راستہ. انعمت کا مطلب تو نے انعامات کیا ہے. علیہ کا مطلب حرف جر، ان کا مطلب ان پر. ایسے لوگوں کا راستہ جن پر اللہ آپ نے انعامات کیے ہیں. تو یہاں پہ الذین کا بھی ایگزامپل مل گیا آپ کو، الذی کا بھی ایگزامپل مل گیا. یہ چیز سیو کر کے رکھیے آپ، تاکہ اب یہ تو انٹروڈکشن ہے، آپ کو ابھی سے پتہ لگے گا. تو جب ڈیٹیل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بڑے ہی خوش ہو جائیں گے. اچھا آگے کا دیکھیں گے. اب ہم یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ سب. آج آپ کو میں کل جب حافظ صاحب آپ کو اس میں جنس پڑھا رہے تھے
तो वो इसमें जिन्स की वजाहत और भी अच्छी तरह करूंगा। हाँ ये देखिए, हाजा, हाजी ही, जानी का, तिल का, कल मैंने इंट्रोड्यूस किया आप, ये देखिए आपको उर्दू वालों के लिए है ये। पढ़िए क्या है ये। किताब, ये किताब है। हाँ ये ऐसे उस्मान में किसी चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करीब की चीज की तरफ इशारा करने के लिए इशारा करीब, और दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए इशारा करीब इस्तेमाल होता है। ओके, तो आपको ये उर्दू वालों को उर्दू में आ जाएगा, इंग्लिश वालों को बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर नियर एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर फार अवे। तो धीरे धीरे एक एक चीज आपको खोल रहे हैं हम। अब ये देखिए, इसमें मौसूला के नाम है रिलेटिव प्रोनाउन, और इसके मानों के साथ आप ये सेव कीजिए। अल्लजी वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए। अल्लजाने तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लजीना जमा के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लती वाहिद मोनस के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लतानी ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लाती वो सब औरतों के लिए इस्तेमाल। ये आपको अगर उर्दू नहीं आती तो अंग्रेजी में देखिए। अल्लजी वाहिद मुज़क्कर के लिए, अल्लजानी तस्निया मुज़क्कर के लिए, अल्लजीना जमा मुज़क्कर के लिए, अल्लाती वाहिद मुअन्नस के लिए, अल्लतानी तस्निया मुअन्नस के लिए, और अल्लाती जमा मुअन्नस के लिए। ठीक है। इसके लिए इसके अलावा दो आते हैं, मन, जो या जिसने, माँ, जो और जिसने, ये भी आते हैं। इतने मिलकर पूरे के पूरे इसमें मौसूला कहलाते हैं, और ये कम से कम 250 बार इस्तेमाल हुए हैं। तो ये पूरा अभी किस्सा जो हमने बोले थे डेफिनेट नाउन्स का आपके सामने चक्री है। ये बीच में पढ़िए, नीले में देखिए, पीले में देखिए। प्रॉपर नाउन इसमें अलग, नंबर 2 दमायर प्रोनाउन इसमें इशारा, हाँ रिलेटिव प्रोनाउन अभी जो देखे हमने इसमें मौसूला, लाम तारीफ अल लगाने के बाद में, और बाद में हमने पढ़े थे मुदाफ मुदाफ इलैहि, किताबुहु किताबु हामिद, ये 7 आपको आ जाएंगे, और वो मुअर्रफ बिल्लाम अल लगाएंगे तो बढ़ेगा। ये आपके पास नोट्स में है। तो आज हम फिनिशिंग कर रहे हैं, कल से फिर आ जाएंगे। चलिए आप अब जरा इस पे गौर कीजिए। टॉपिक का नाम कल हाफिज साहब ने इंट्रोड्यूस करे थे, जिन्स। जिन्स यानी मर्द या औरत। अब इस पे पहली कैटेगरी है ऐसे इसम जो रियल है, रियल यानी नेचुरल फेमिनिन। नेचुरल क्या रहता भाई, अब बोलेंगे तुम्हारे अब्बा, अब अब्बा बोलने के बाद तो देखने की जरूरत नहीं है मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। अम्मी, अब बोलने की जरूरत है कि मुज़क्कर मुअन्नस है। हाँ जी बोलो, नहीं ना, नेचुरल। गाय, गाय मुज़क्कर है मुअन्नस है, मालूम आपको। बकरी मालूम है, बकरा मालूम है। अब दूसरी कैटेगरी है जो आपको किसी खास इशारे से बताया जाता है, फीमेल बाय साइन। कल आपको 4 साइन बताए थे बहुत, और हाफिज साहब ने क्या कहते भाई, पहली साइन बताए थे गोलता, दूसरी साइन बताए थे, क्या बताए थे, अलीफ अलिफ मकसूरा, मकसूरा, तीसरी साइन बताए थे अलीफ ममदूदा। ममदूदा, हाँ, और तीसरा किस्म है, इसको मोनस सिमाई कहते हैं। क्या बोलते हैं, यानी सुनकर, खाली सुनकर समझे हम लोग। जैसा आपके अब्बा ने बोले थे खिड़की खुलती है, अब खिड़की खुलती है, हमको तो बचपन से खुलती खुलता नहीं बोले, खिड़की दरवाजा खुलता। तो पैदा होने के बाद हमने जो उर्दू सुने थे, तो दरवाजा कोई पैंट पहनने वाला नहीं है, या खिड़की कोई साड़ी नहीं पहनती। तो ये सुन सुना है, बोलो सुना,
सुना हुआ, अरबों को बोलते हुए हमने सुना और हमने भी उसकी इत्तबा की। कितने कैटेगरी है? तीन। पहला कौन सा है? नेचुरल रियल, यानी उर्दू में बोलते हकीकी। अम्मी हकीकी मोनस है, अब्बा हकीकी मुजक्कर है। अब ऐसे लोगों का नाम जो मुस्लिमुन है उसको मुस्लिमतुन बनाए, तो आप बोलिए अच्छा अच्छा ये औरत का नाम, ठीक है। अब ये जो बाय यूसेज का एग्जांपल देता हूं, मुसलमान लोग सूरज को मुजक्कर बोलते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन अरब सूरज को मुअन्नस बोलते हैं। मुसलमान औरत का नाम चांद रखते, चांद जैसी है, लेकिन अरब चांद को मुजक्कर मानते हैं, उल्टा है। तो आज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा खोल रहा हूं, यहां देखिए जरा, यहाँ पे ये आप नोट कर लीजिए। हयात के एतबार से उर्दू आती तो हयात के एतबार से बिन तो यानी बेटी। अब बेटी के बारे में पूछेंगे क्या मुजक्कर है कि मुअन्नस है? नेचुरल, ठीक है। हकीकी बोलो, हकीकी मुअन्नस। नंबर 2 कैटेगरी देखो, ऐसा इस्म जिसके आखिर में ता मरबूता लगा हुआ है। शजरतुन, झाड़, हम झाड़ को मुजक्कर मानते हैं, अरब झाड़ को मुअन्नस मानता। अच्छा, उसके बाद तीसरी कैटेगरी देखिए, अलीफ के बाद में हमजा, उसको क्या बोले थे हमने? अलीफ ममदूदा। समाउन, आसमान को हम मुअन्नस नहीं बोलेंगे, मुजक्कर बोलते हैं, आसमान खुल गया बोलते हैं, लेकिन अरब आसमान खुल गई बोलता। अच्छा, बहुत अहम है, हाँ, ये लिख के रखो और अभी से याद करो, ताकि जब टॉपिक आएगा जब आपको बहुत फायदा होगा। शहरों के नाम, हर बड़े शहर का नाम मुअन्नस माना जाता है। मुल्कों के नाम, मक्का, तो देखो ता दिख रहा है, मुअन्नस है। आग से जो भी चीजों का ताल्लुक है, बोलो आग से, फायर, आग से जिसका भी ताल्लुक है वो तमाम मुअन्नस से अरबी में। नार, नार बोल तो आग, दोजख, नार। सूरज में आग है तो सूरज भी मुअन्नस बना दियो। चांद में आग नहीं है, चांद में लिए वाली रोशनी है, इसलिए मुजक्कर है। अब समझे आप? हाँ हाँ, क्या वो बोरोड लाइट। अब आखिरी चीज देखिए और बहुत अहम है, जिस्म के ऐसे आजा यानी बॉडी पार्ट्स जो डबल डबल है, आंख, कान, ऐसी चीजें जो डबल है, हाथ, ये भी मुअन्नस मानता है अरब। अभी आप खाली लिख के रखिए और धीरे धीरे याद कीजिए। तो कल आपको खाली हमने ट्रेलर दिए थे, आज थोड़ा ज्यादा खोल दिया। तो देखो एग्जाम्पल, बिंतुल लड़की मुअन्नस, शजरतुल झाड़ मुअन्नस, समाउन आसमान मुअन्नस, मक्कतु शहर का नाम मुअन्नस, नारुन आग का नाम मुअन्नस, ऐनुन आंख दो रहते इसलिए मुअन्नस। अच्छा, उम्मुन, देखो उम्मुन पे बोलता नहीं है लेकिन फिर भी आपको मालूम है अम्मा को मुअन्नस ही बोलना पड़े। अब देखो ता है लेकिन मर्द का नाम है हमजा, तो हाँ, ये हमजा रखा हुआ नाम है तो इसके ऊपर कोई भी रूल चलेगा नहीं। आप जरा गौर फरमाइए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। पढ़िए, हाजा किताबुन, ये है कोई किताब। अब किताब मर्द है कि औरत है? मुज़क्कर है, तो आप समझ जाएंगे इसके ऊपर कोई भी गोलता नहीं है, अलीफ ममदूदा नहीं है या मकसूरा नहीं है, बस जो निशानियां नहीं है तो फिर वो मुज़क्कर है। अब बोलो हुआ अबुल, वो है अब्बा, और अब्बा को देखने की जरूरत नहीं है, मुअन्नस के मुज़क्कर है। अब इधर हाज़िही हकीबतुन, हाज़िही फीमेल के लिए, यहाँ पे आखिर का हर्फ जो है बोलता नजर आ रहा है, वो फीमेल है।
अब अम्मी को बोलो हिया उम्मुन। अब इसको देखने की जरूरत नहीं, बोलता है नहीं है। ठीक है, तो आज आपको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चल रहा हूं, ये देखिए छोटे में कर दिए ये फेमिनिन नाउन्स। पहली किस्म क्या है, ता मरबूता पे खत्म होते हैं। दूसरी किस्म क्या है, अलिफ मकसूरा पे, यहाँ के ऊपर एक खड़ा जबर होता है, उसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। और अलिफ ममदूदा क्या है, अलिफ आता है उसके बाद में हमजा आता है। ठीक है, अब यहां तक क्या ही याद रखो, ये थोड़ा उर्दू वालों के लिए लिख दिया मैं। तो कल से आज थोड़ा ज्यादा वाजे हो गया। हाँ, अलिफ मकसूरा कैसा लिखते, यहाँ पे खड़ा जबर लिखते। हाँ, अब देखिए मस्कुलिन की कोई खास, यानी कि मुज़क्कर की कोई खास पहचान नहीं है। ये अगर फीमेल के कोई इशारे नहीं है तो उन्हें मुज़क्कर बाय डिफॉल्ट है। अब देखो मस्जिदुन मुज़क्कर है या मुअन्नस है, मुअन्नस की कोई निशानी नहीं है इसमें। बोलता है क्या, मुज़क्कर। अलिफ मकसूरा है क्या, अलिफ ममदूदा है क्या, नहीं। नहीं है, तो फिर बोलना मुज़क्कर है। शरीरुन कोई निशानी नहीं है, इसलिए उसको मुज़क्कर बोलेंगे। बैतुन कोई निशानी नहीं है तो मुज़क्कर हो गया वो। तालिबुन, ये तो भाई आपको दिख रहा है, ठीक है, हकीकी है। अब देखो असातुन फर्नीचर, कुतुन है क्या, असासुन, यानी कि ये मुज़क्कर है। खितारुन ट्रेन है, मुज़क्कर है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अंदाजा आ रहा होगा। अब यहाँ देखो बाजी पढ़ा रहे, देखो उस्ताजतुन, हाँ उस्ताजा बोलते हैं। अब बोलता देख रही तो फीमेल है। वरखा, वरखतुन पेपर, तबीबतुन डॉक्टरनी, तो बोलता बता रही है हमको। अब देखो सलातुन वही फीमेल है, बोलता। सातुन टाइम, वॉच को बोलते सातुन। गुरफतुन कमरा, अपन कमरा बोलते, अरब कमरी बोलता। हाँ देखो मदरसतुन, ये भी मुअन्नस है। दर्राजतुन साइकिल, बोलता। जामियातुन यूनिवर्सिटी, बोलता, मुअन्नस है। ठीक है, जरा अंदाजा हो गया आपको। तो जरा बेकरारी से करार की सांस लो, और 115 के बाद 116 पे नया टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं। ये कल हाफिज साहब ने बताए थे, उसकी वजाहत हो गई। आज हम पढ़ने लगे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब ऐसा लफ्ज, बोलो, ऐसा लफ्ज जो इसम के बारे में अच्छाई या बुराई करता है, इसम के बारे में अच्छा या बुरा कहता है, उसको उर्दू में सिफत कहते हैं, अंग्रेजी में एडजेक्टिव। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बिल्कुल सादा एग्जाम्पल लेता। आपके घर पे एक पाली हुई बिल्ली है। बिल्ली को अरबी में खित्तुन बोलते हैं, खित्तुन। अब जरा बिल्ली के मुतालिक जरा बातें बताओ, बोला बिल्ली काली है, बिल्ली सफेद है, बिल्ली मोटी है, बिल्ली छोटी है, बिल्ली खूबसूरत है, बिल्ली बदसूरत है, बिल्ली काइंड है, बिल्ली अनकाइंड है। ये जो बातें मैं बता रहा अच्छी और बुरी, ये सब क्या है, बिल्ली के मुतालिक क्वालिटीज है, इसको सिफात कहते हैं। एक है तो सिफत होती है, जमा है तो सिफात होती है। अंग्रेजी में इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे अपन। एक बोलो अ बॉय, अ टॉल बॉय। अब अ बॉय, अ शॉर्ट बॉय, शॉर्ट और टॉल क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। अ गर्ल,
अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक खूबसूरत लड़की। अ गर्ल, एन अगली गर्ल, बदसूरत लड़की। तो अच्छाई और बुराई इसम के बारे में जिस लफ्ज से की जाती अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं और अरबी और उर्दू में सिफत या अनेक सिफात कहते हैं। तो हमने देखे थे 4 क्वालिटी इसम के। क्या क्या देखे थे भाई? पहला देखे थे वुसअत, डी, कॉमन नाउन है या प्रॉपर है, वलदुन है या अलवलद। फिर देखे थे जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है कि मुअन्नस। तीसरा देखे थे हमने अदद के हिसाब से वाहिद है, तस्निया है, जमा। और एराब के मुतालिक देखे थे हमने रफा है, नसब है या जर। तो ये 4 क्वालिटीज से हमेशा हम ये 4 पैमानों पर इसम को तोलते हैं। तो एडजेक्टिव के मुतालिक अगर आगे चलेंगे, पढ़िए। एडजेक्टिव ऐसे लफ्ज होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटी नाउन की, अच्छी या बुरी। बेबी, एक छोटा बच्चा है, बोलिए ब्यूटीफुल बेबी, खूबसूरत बेबी। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया भाई? सिफत हो गई। जिसकी भी तारीफ की जाती है, बोलो, उसको मौसूफ कहते हैं। जो तारीफ का नाम है सिफत, और दोनों मिलके एक मुरक्कब बनते हैं, उसका नाम है मौसूफ सिफत। हाँ, इंग्लिश में एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे और अरबी में मुरक्कब तौसीफी कहेंगे। खाली कान पे से जा रहे तो याद बात करो मत, ये बहुत बकबक करने वाले हम लोग और आपके दिमाग में डालेंगे इंशाअल्लाह। आइए, वरदू बोलकर बोलेंगे तो गुलाब के फूल को कहते हैं अल वरदतुल, गुलाब का फूल। अब गुलाब के फूल के बारे में कुछ कमेंट करो। लाल गुलाब का फूल, पढ़िए। अहमरो, अल हमराओ, फीमेल है तो करेंगे हमराओ। हमराओ का मतलब लाल। स्वर अलवरदतुल अल हमरा। जमीलतुल, खूबसूरत गुलाब का फूल। छोटा फूल बनाओ, अल सगीरतुल, अल वरदतुल। और खुशबूदार महक वाला, फवाहतुल, फ्रैग्रेंट। अब जरा इसमें एक चीज गौर करो डॉक्टर साहब, गुलाब की जिन्स पहचानो, बोनस। और उसकी सिफत की जरा जिन्स पहचानो। हाँ, तो अरबी में यह खास बात है, औरत की सिफत औरत होगी। औरत की सिफत मर्द को नहीं दे सकते। अगर हमने लिखे अल वरदतुन जमीलुन, नहीं जमेगा, जमीलतुन ही छाना पड़ेगा। आप समझे? हाँ, ये रूल है। जैसा इस्म वैसी सिफत। इस्म यानी मौसूफ अगर मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर। अगर मौसूफ लेडी है, औरत है, उसकी सिफत भी मुअन्नस आएगी। ये अरबी का ज़ाब्ता है। बोलो, मैं क्या बोला? कोई भी चीज की बात कर रहे क्वालिटी, तो उसको हम मौसूफ कहते हैं, और उसके मुताल्लिक कोई बात करते हैं तो उसको सिफत कहते हैं। ये दोनों मिला के पढ़ो, अल वरदतु, अल जमीलतु। हाँ, ये हो गया मुरक्कब तौसीफी। अल वरदतु, फवाहतु। फवाहतु नहीं पढ़ सकते अभी अपन, क्योंकि अल इधर आया तो उसको भी अल आना पड़ा। अब समझे? चारों एतबार से ये सिफत और मौसूफ मैच करना, दोनों में इकसानियत होना पड़ेगी। आगे चल के देखेंगे हम धीरे धीरे।
अब जरा आइए यहाँ पे आप और फरमाइए, और कुछ सवाल है तो अब आप कर सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़िए। नाउन्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वर्ड्स कॉल्ड एडजेक्टिव्स। नाउन्स की तशरीह की जाती है सिफत से। तो इसमें मौसूफ कौन है भाई बताओ? अ बिग हाउस में मौसूफ कौन है? हाउस। सिफत कौन है? बिग। और ए क्या है? नकीरा है। हाँ बोलो, शाबाश। बैतुन कबीरतुन फरस, दोनों भी बोनस है। आया समझ में? बहुत अच्छा नक्शा। नीचे अरबिक में सिफत का मतलब है एडजेक्टिव। अच्छा, इसको नात मनूत भी बोलते हैं कुछ लोग, मालूम है क्या बोलते हैं? नात मनूत किताबों में। तो यहाँ देखो, आप यहाँ पे बैतुन कबीर, तो बैतुन मारिफा है कि नकीरा है? नकीरा। तो उसकी सिफत भी नकीरा ही, ठीक है। कबीरतुन, बैतुन कबीरतुन। अब बैतुन को मारिफा करो, अल बैतु अल कबीर। हाँ बोलो, अल बैतु अल कबीरतु, ठीक है। हाँ देखिए, अब जरा ये बच्चे देखो दोनों में। एक लड़का ग्रीन शर्ट वाला लंबा बॉय है, और उसकी हाइट लंबी, कैसा पढ़ेंगे आप? अगर हमें लड़का पहचानता नहीं है तो बोलो वलदुन तवीलुन, दोनों मुज़क्कर है। वलदुन तवीलुन। अब इसमें मौसूफ कौन है? वलदुन। सिफत कौन है? तवीलुन। अब देखो, ये इंग्लिश का कोई काम नहीं। हाँ, यहाँ से अपन आगे बढ़े। हाँ ये पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? मुब्तदा और खबर दो चीजें होते हैं किसी भी जुमले के सिफत को बयान करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलो। चलो यहाँ पे पढ़ो। ये वोकैबलरी है। हादुन बोले तो चार। बोलो सिक्कीनुन, बोलो हादुन, तेज छुरी। ठीक है। वसीउन, बोलो वासिउन। वासिउन का मतलब कुशादा, चौड़ा। बोलो अलबा, बोलो बाबुन वासिउन, चौड़ा दरवाजा। जकीयुन, आपको तो उर्दू है जकीयुन, यानी इंटेलिजेंट। बोलो वलदुन जकीयुन। हाँ। बिल्तुन लो, बिल्तुन जमीलतुन। बॉय आएगा तो अल वलदु वलदुन जमीलुन। हाँ, मर्द को मर्द दीजिए सिफत, और फीमेल को फीमेल दीजिए सिफत। हाँ बोलिए। आप बेटा बनाएंगे, आप लड़का बना रहे ना। हाँ उधर चलो। हार्ड वर्किंग देखो, बोला हार्ड वर्किंग। मुज्तहिदुन, बोलो। हाँ तो आप बोलो तालिबुन, तालिबुन मुज्तहिदुन। हाँ, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। हाँ। नजीफुन, बोलो मिंदीलुन नजीफुन, बोलो क्लीन दस्ती, साफ दस्ती। अब दोनों साफ शर्ट बनाओ, नजीफुन लगाने का। कमीसुन नजीफुन, कमरा साफ बनाओ। गुरफतुन नजीफतुन। हाँ ये चीज याद रखना है इसमें।
जैसा मौसूफ है मर्द है तो उसकी सिफत भी मुज़क्कर आएगी। धीरे धीरे आदत होगी आप लोगों, फिक्र मत। अच्छा, फिर इसके बाद हमने आपको थोड़ा सा इशारा दिए थे, इसमें इशारा हाजा यानी क्या है भाई? ये ये हाजानी ये दो, हाजी ही ये एक मुअन्नस, हातानी ये दो मुज़क्कर, हा उलाई ये तमाम लोग, जालिका वो एक। ये चार्ट आपको लिख के रखना है, देखो ऊपर देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है हाजा यानी दिस। इधर से अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह मुबारक। हाँ, हाजा के क्या मायने होंगे भाई? इंग्लिश में पढ़ो दिस। आजानी जरा पढ़िए, पॉइंट आउट करना है किसको? हाँ, दो तस्निया के लिए ये दो बोलो। हाँ, आजानी यस, हाजी ही पढ़िए। एक मुअन्नस की तरफ इशारा करीब से करेंगे तो हाजी ही, दो करीब के मुअन्नसों को नजदीक से इशारा करेंगे हातानी। हाजानी दो मर्द, हातानी दो औरत। अच्छा, ये तमाम मर्द बोलो, हा उलाई ये तमाम मर्द। अच्छा, जालिका बोलो तो वो एक मर्द। वो एक मर्द, दूर इशारा दूर। हाँ, जालिका दो दूर मर्द, तिल का एक मुअन्नस, कानी का दो मुअन्नस है, उलाई का वो तमाम लोग। तो मेरा कहना है, आपको नोट्स इसलिए दिए हैं कि आप रख कर इसको धीरे धीरे याद करें, समझे, और जब ये इसकी डिटेल पढ़ाई जाएंगी तब तक का आप तैयार हो जाए। आज इसलिए मैं तमाम चीजें आपको निशानदही कर रहा हूं, क्योंकि इंशाअल्लाह पीर के रोज से हम लेवल 2 में जा रहे हैं। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन बताया था मैंने, अल्लज़ी पढ़ो। इन्ना रब्बुकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द। इन्ना का मतलब बताए थे आपको, बेशक। रब ये इस्म है, उसको लगी हुई जमीर हमेशा मुत्तसिल जमीर होती है और रिश्ता बनता है मुदाफ इलैहि का। पढ़ो, तुम सबका रब, ठीक है। हम सब अब तुम सबका रब को मुदाफ बनाओ और अल्लाह को बनाओ। रब्बुकुमुल्लाहि, अल्लाह तुम्हारा रब, जिसने बनाया है। हाँ, अल्लज़ी का मतलब जो या जिसने, खलक़ा का मतलब बनाया। किसको बनाया? आसमानों को और जमीन को। इस तरह से पढ़ने में हमारे काम में आएगा। नीचे पढ़िए, अल्लज़ीना दिख रहा वहां पे, आमनु वामिलुस्सालिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस्सब्र। इल्ला कल मौल साहब ने बताया आपको, छोड़कर उन लोगों को जिन्होंने ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। समझ में आ गया? वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र, ठीक है। तो ये है पूरा चार्ट, आपके 7 डेफिनेट और इनडेफिनेट, हर चीज का एक जगह आपने रखना है इसको, और आपने कागज बना के आपके सामने रखना है। एक आयत पढ़ते टाइम पर ये तमाम चीजें आपके लिए आसान होगा। तो पहला पढ़िए क्या है इसमें, अलम। उर्दू पढ़िए। मफकूद शख्स जाती नाम, या यूसुफ, लाहौर लाहौर शहर का नाम। नंबर 2, पर्सनल प्रोनाउन, इसमें दमीर जो हमने पढ़े थे, हुआ, अंता, अना, नहनो, हुआ, नहनो, इसका नाम क्या है? इसमें दमीर। इंग्लिश में बोलो प्रोनाउन। नंबर 3 पे आइए,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इशारे से बताने वाले हाजा जालिका। हाँ, पूरा जो पढ़ा है हमने 15 दिन, वो ये चार्ट है। इसमें मौसूला देखिए, अल्लजी अल्लजीना अभी बताया मैंने जो। मुअर्रफ बिल्लाह, वो इस्म जिस पर अलिफ लाम दाखिल हो। अल किताबो, अद्दीनो, अब मुअर्रफ बिल्लाम जा रहा है इजाफत में, मुजाफ मुजाफ इलैहि बन रहा है। देखिए, रब्बिल आलमीन, आलमों का रब हो गया मुजाफ, अल आलमीन हो गया मुजाफ इलैहि। अब इसमें मुनादा, आवाज लगाने वाला इसम, या रजुलु, अहफ किया हुआ, ऐ आदमी। तो अगर ये चार्ट से आप वाकिफ हो जाते हैं और याद कर लेते हैं, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत बड़ा हिस्सा आप असबर हो जाते हैं, आपकी जुबान पे आ जाते। चलो यहां पर एक आधा मिनट रुककर सोचो और मुझसे सवालात करो। सर वो सिफत के बारे में जो आप बताए। हाँ बताइए, क्या पूछे, जरा सवाल खुल के कीजिए आप। सर सिफत के बारे में आप बताए ना सर, तो वो इसमें नकीरा में जाएगा सर, वो इसमें मारफा नहीं में नहीं बचिया, आएगा क्या? हाँ एक सेकंड रुक जाओ, आपका सवाल अच्छा है, मैं यही आपकी क्लैरिफिकेशन करता हूं। अब ये पढ़ना है अपने को ऐसा, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूं। ये सिफत, ये मौसूफ है। ये क्या है? मौसूफ है। और ये क्या है? सिफत। बहुत आसान है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले चेक करना पड़ेगा आपको, ये साहब कौन है। अब मैंने कहा वलतुल, ठीक है भाई, क्या बोला मैंने? तो आपने ये चार चीजों पे चेक करके बोलो, ये मारिफा है कि नकीरा? नकीरा है। यहाँ लिख दिया अपन ने, क्या है ये? डेफिनेट इंडेफिनेट में नकीरा है। माशाअल्लाह। और हालत क्या है भाई? रफा हालत में है। माशाअल्लाह। रफा है। नंबर में वाहिद है और जेंडर में मुज़क्कर है। ठीक है भाई, खासा बराबर है। अब इसकी जो सिफत आएंगी ना, वो चारों में से माना। हाँ, तो अब हम लिखेंगे मुस्तहीदुन। अब जरा देखिए भाई, मुस्तहीदुन को चेक करो। पहला देखो, डी नकीरा है कि मारिफा है? नकीरा है, पास। पहला शादी कर रहे ना दोनों की, दोनों चीजें जमा रहे को, पास, खानदान जुड़ गए। अब नंबर देखो, रफा है, ये भी पास। दो सिफतें जुड़ गई, बच्ची और बच्चे की। हाँ, वाहिद है कि जमा है, और ये भी पास। मर्द है कि औरत है? पास। चारों पास हो गई, शादी कर दो। जम गए। अच्छा, बदल दिया तो। हाँ, और आपके खातिर आपने इतना अच्छा सवाल करे तो मुझे बड़ी खुशी। हाँ, क्या लिखा भाई मैंने? मुस्लिम। गोल गोल गोलता दिख रहा है, और दो तनवीन भी दिख रही। चेक करो, मारिफाई के नकीरा है।
नकीरा नकरा है। नकीरा अच्छा, दूसरा पढ़ो रफा है, रफा है। तीसरा पढ़ो रफा है, वाहिद है, वाहिद है। वाहिद मुज़क्कर है के सर, मोनस, मोनस है। मोहम्मद सर। आ गया। तो अब यहां पे लिखेंगे अपन साले मुस्तहिद मेहनती मुसलमान नहीं है, मेहनती मेहनती मुसलमान नहीं। चेक कर लिए, चारों किस्म मिल रहे हैं। ये देखो कौन है, नकीरा। नंबर 2 रफा, नंबर 3 वाहिद, नंबर 4 मोनस। मोनस मोनस मिल गए। तो ये मौसूफा है और उसकी सिफत। तो सिफत मौसूफ जो है वो चार चीजें क्या होना, एकसानियत होना। कोई बनता नहीं तो देखो दल, आप बोलो बोला अल बिंतु, बोलो अल बिंतु। अल लगा हुआ है, मारिफा नकीरा, मारिफा रफा वाहिद मोनस। जमीलतुन, अल जमीलतुन, अल बिंतु आता है, अल बिंतु आना जरूरी है। फिर बोलो क्या है, मारिफा। अल जमीलतुन बोलो मारिफा, रफा है, वाहिद है, मोनस। मिल गए। इसके अंदर कुछ भी नहीं करने का, ये चार का पैमाना अच्छा समान। दिन अगर मिलता है तो मौसू सिफत बनते हैं। मौसू सिफत का चैप्टर ही खत्म। तो भाई साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं, जिन्होंने पूछा है। मौसू सिफत 8 दिन 15 दिन पढ़ा रही थी, करता ही कोई करो। आप भी कोई तो उर्दू में बोलो, दो सीधा बोलो, उर्दू में बोलो मौसू सिफत। अरे भाई बोलो ना, कुर्सी बड़ी, बोलो बड़ी कुर्सी, बड़ी कुर्सी। कुर्सी पे आप पहले कुर्सी और कभी हो गया खत्म। एक खास कुर्सी, एक खास बड़ी, अल कुर्सी और कभी हो। कमरा बड़ा बना, गुरफतुन नकीरा है वो, कबीर गुरफतुन कबीरतुन। अब खास करो, अल गुरफतु अल कबीरो। टॉपिक खत्म होगा। हाँ भाई, आप लोग और भी सवाल कीजिए। देखिए, आपका सवाल जो रहता था उसका मैं जब जवाब देता हूं तो वो जिंदगी भर याद रहता है, इन्होंने जवाब दिया था, मैंने पूछा, ये आप भूलते ही नहीं करते। हाँ बोलो क्या है ये, सर कलम। हाँ बोलो, हेलो, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। सहाबा का जो नाम है सर, अबू बकर वो सिफत सिद्दीक नहीं है बेटा, से उसमें अबू बकर सिफतें नहीं दी गई। वो सिफतें नहीं है, उनको छोड़ दीजिए। सिद्दीक। आप रोजमर्रा की चीजें देखिए, उधर मत जाइए। ये क्या है, ठीक है। खास है, अल कलम। हाँ हाँ, और साफ सुथरी बोलो, नजीफ हो, अल नजीफ हो, अल खबीस हो, अल नजीफ हो, अल मिंदील हो, अल नजीफ हो। आया, धीरे धीरे चलेंगे, बड़े बड़े सीधा शुरू में नहीं लाना, बम डालो पे डालो। ठीक है भाई, चलो आगे चलेंगे, यहां तक आ गए हम लोग। तो ये चार चीजें, ये 7 चीजें मैं लिख के दिया हूं, ये आपके बेहद का। अभी मेरे पास 7 मिनट है। चलो ये देखो क्या है अगली चीज जो वापस आपने बताए थे,
وہ تھے اس میں استفہام، بولو، اور حرف استفہام. اور یہ جو حمزہ آ رہا ہے سوال کرنے کے لیے، جسے کہتے ہیں حمزۃ الاستفہام. بولو، یہ ہے قلم، بولو هذا قلم. انگلش میں بولو دس از اے پین. انگلش میں بولو از دس اے پین. بولو از دس اے پین. عربی بولو هذا قلم. آ گیا. تو دو چیزیں استعمال کرتے ہیں. ایکشن ورب جب آئے گا، حل آئے گا. بولو ڈو یو اسپیک انگلش. تو حل لگائیے عربی میں. بولتا کیا تو بتائیے، تو دھیرے دھیرے کھولیں گے. اچھا، سوال کرنے والے اسم، یہ آپ کے خود کام ہے. انٹرگیٹو پروناؤنس پڑھیے. پہلا ماں. ماں. ماں ہاذا، بولو یہ کیا ہے. ہاذا قلم، یہ بچے کا پڑھا. من ہاذا، یہ کون ہے. جو خبر ہے وہ جب من ربک، تیرا رب کون ہے. کون یعنی کہ غیر عاقل کو ماں چیز کو، اور زندہ لوگوں کو مان. یہ دو مل گئے، باہر من مل گئے. اب بولو ہاؤ آر یو سر. بولو نا، بولو کیسا حالوں کا یا استاذ. کیسا بولے تو کیسا. ہاں یہاں آ جاؤ. یہ کیا ہے. آئینہ بولے تو لڑکا کہاں ہے. آئینہ بھائی تو تیرا گھر کا ہے. بولو متا خرجتا، کب جاتا کب گیا. ایانا وین، دو آتے ہیں. چلو ایو، ایو، ہاں بولو ایو بنتن، کون سی لڑکی. سورہ ملک بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، کون ہے تم میں سے بہتر عمل کرنے والا، اس کے لیے جنت. ایو، ایو میں سے کو، which is the best doer of اعمال. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ جنت سجا رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا مشن ہی یہ ہے کہ انسانوں کو پیدا کرے تو جنت میں ڈال دے. لیکن انسان اتنا بدماش ہے کہ دوزخ میں جانے کی روز کاروائی کرتا. بات سمجھ میں آ گئی. اور یہ جب سمجھے گا قرآن تو آپ کو سمجھے گا احکام کیا ہے، ممنوعات کیا ہے. جیسے آپ نے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے سگنل ریڈ ہے تو توڑنا نہیں، چالان ہوتا. تو آپ کو اس کا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا سمجھے گا. اسی طرح سے دنیا کا کانسٹیٹیوشن، انسانوں کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے. تو اگر آپ کو قرآن نہیں پتا ہے تو کانسٹیٹیوشن آف ہیومن بینگ نہیں معلوم. تو کتنے بیڈ لک والے لوگ ہیں جو قرآن فری میں پڑھا رہے تو پڑھنے کو نہیں چاہتے. کیا کرنے، اچھا کھا رہے اچھا پی رہے، یہ کہیں پورے بابا. ٹھیک ہے، چلو لاسٹ ٹو بینچ ایک ایک ایگزامپل لے لو. زید صالح، ہے کیا زید نیک. حل زید صالح، سیم ہے کیا زید نیک. زید صالح، زید نیک ہے. سوال کرو زید صالح نام، یا نہیں تو لا. نام بولے تو ہاں، لا بولے تو نہیں. حرف جواب ہے یہ. کیا بولتے حروف. تو کیا ہوتا لے گا ایجاب و قبول، ہاں یا نہ. لڑکی قبول. اب ہمارے حافظ صاحب، اپنے خالد صاحب کے جیسے قاضی گئے، ایک لڑکے کو شادی نہیں کرنی.
मंडप पे बैठ गए, बैठ के हाँ हाजी साहब बोल रहे बोल बेटे मुझे निकाह कबूल है। तो बच्चा बोला हाँ हाजी साहब तुमको निकाह कबूल है। अरे मेरे को बोल, बोले हाँ तुमको भी बोले। देखो कितना प्रोनाउन में गलती से कितनी बड़ी है। और तुम कुछ को बोले, और तुमको खुद बोले तुम भाग गया है हाफिज साहब, गड़बड़ का में प्रोनाउन में। हाँ पढ़ो ज़ाहिबा जायदुन, बोलो ज़ाहबा जायदुन इलल मस्जिदी, बोलो ज़ाहबा बोल तो गया, जैद मस्जिद के जाने। अब ये पढ़ो ज़ाहबा जायदुन इलल मस्जिद, गया क्या, गया क्या जैद, हल ज़ाहबा गया क्या, डिड ही गो। तो ये अल जहा सवाल बना है। मैं सबके सबको आपको तबर्रुक बांटे जैसा थोड़ा थोड़ा सब दे रहा हूं। तो मंडे से असली फिल्म चालू है। ये पढ़िए खलकल इंसाना मिन अलकी, मिन तीन नहीं है, अलक, लीच लाइक सब्सटेंस। हाँ अब जरा खलका में देखो ऐराब है, हरकत भी हम्म, ऐराब भी है। हरकत किसको बोलेंगे, ये और ये हरकत है, आखिरी का ऐराब। अल इंसाना यहाँ पे भी ऐराब है, लेकिन मिन के अंदर ऐराब नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं मबनी। इन्हें अपनी हालतें शो नहीं करता, इसलिए इसे मबनी कहते हैं। बाकी सब शो करते तो उसका होते मौरब। बोलो मौरब का उल्टा क्या है, मबनी। ये भी समझ में आ गया, दो टर्म समझ में है। जो रफा नसब जर बताता उसे क्या बोलेंगे मौरब, जो नहीं बताता खलास। हाँ ये हर्फ निदा आपका पढ़ो, या वल देखो या के साथ वलद नहीं आएगा, हक करना पड़ेगा। अरे लड़के पुकार, या वलदू, मुजाफ में अखक होता है, यहाँ अखक होता, दो ही जगह अखक। देखो इन्हें मुनादा है, इन्हें निदा है, हो गया तरफ। जब या के साथ अल वाला इसम लगेगा बोलो, और या के साथ में फीमेल लगेगी, और या के साथ में मुजाफ आएगा, ये तीन चीजें सीखने हैं हम। तो ये क्या हो गया, या के साथ अल लगाएंगे तो या अय्यो हल वरद होगा। आप कल पूछ रहे थे ना अय्यो कब लगता, डेफिनेट इसम के साथ अय्यो हल वरद या अय्यो हल इंसान, डेफिनेट। और औरत के साथ क्या लगता, या अय्युहतुल मुत्मइन्ना नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया, वही सही। हाँ मोनस को अय्युहता ता या पिता है ना। ये चार्ट में आपको पूरा मिल जाएगा, फोटो ले लेने से। आपको बोल रही या अरे आग ठंडे हो जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने बोल रहे या नारो। अब देखो खास इंसान है, या अय्युहल इंसान हो, नफ्स फीमेल है, या अय्युहत नफ्स। हाँ अब ये देखो क्या है, मुदाफ मुदाफ नहीं, या अब्दुल्ला नहीं, या अब्दुल्ला। हाँ उन्हें बदलता ना। अब मुदाफ को नहीं में क्या करता, मुदाफ को उन्हें जबर देता। तो ये तफसील पढ़ेंगे हम। भाई हाफिज साहब ने उसको खोले, मैं इसको थोड़ा आपको बता रहा हूं। डन।
अगला बड़ा टॉपिक आने वाला है, ये है देखो एराब। ये पीर के दिन इंट्रोड्यूस होगा, 4 दिन चले, फिर एराब के आप मास्टर इंशाअल्लाह। ठीक है, अब पूरे टॉपिक को खोल के सर्जरी कर रहे हैं, मलहम पट्टी नहीं कर रहे हैं, अब सर्जरी। देखो एराब पे कितने सिजाएं हैं, ये पूरा एराब ही एराब चलेगा। ठीक है, मंडे से पहला सबक एराब आएगा। जरा यहां देख लीजिए जाते जाते, कितना मजेदार है। इतना ही पढ़ लीजिए, पढ़िए पढ़िए ना। मोहम्मद रफा गलत है, नीचे पढ़िए। अच्छा दुआ भाई, आप मोहम्मद है हो गया, नीचे पढ़िए। आलम है, मोहम्मद आ गया। तो ये 3 तरीके से आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मायने है, लेकिन वो लफ्ज के स्टेटस अलग है। यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, यहां ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का है। अगर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाया आपको, यही स्लाइड पढ़ाया, आ जाता। ठीक है, हम सब तशुलाई। तो मैंने आपको सब तरफ से घुमा के ला लिया, पूरे गार्डन में चक्कर लगा के ला लिया। अब आपका काम है फिर से आप और आपके दोस्त अहबाब सबको बोलिए अब सही क्लास चालू हो रही। अब तक क्या करे हमने, वार्म अप करे, यस वार्म अप। खेलने से पहले वर्जिश करें, ताकि हर एक को हर चीज का पता चले। ये अमेरिकन पढ़ाने का तरीका है, वो कभी भी कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं पढ़ा, थोड़ा 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 इंट्रोड्यूस। जैसा बच्चे को उंगली पकड़ के गार्डन में ले जा रहे हैं, ये है ये दम से। तो आप बेफिक्र रहिए, आपको बहुत स्लो बहुत ढंग से मटेरियल देंगे। ये सब मटेरियल मैं मंडे को भेजूंगा, आप उसको पढ़ेंगे, इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे पढ़ाने का नस्बो लाइन क्या है, आप पढ़ाने वाले बने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी Yes, sir. जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको आवाज क्लियर है? क्या किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, नहीं आ रही है क्लियर, आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। DING, इसका क्या मतलब है? डेफिनेटिव मार्फा और नकरा। जी, मारिफा और नकीरा। इसको ग्रामर की जुबान में बोलेंगे वुसाद। वुसाद। एराब नसब जर नंबर, जेंडर अदद, जेंडर, जेंडर है जीन्स। जीन्स। डी का मतलब है ग्रामर की जुबान में इसको बोलेंगे वुसात।
वसात के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, कौन सी है? मारिफा और नकीरा। मारिफा और नकीरा। नकीरा। मारिफा और नकीरा। एराब के एतबार से तीन हालतें हैं एराब की, वो कौन सी है? रफा जर और नसब। नसब रफा नसब नसब और जर। रफा रफा नसब नसब और जर जर। जर रफा नसब नसब जर जर। आदत के एतबार से तीन हैं, कौन से? वाहिद तस्निया वाहिद तस्निया वाहिद जमा। तस्निया जमा। वाहिद तस्नीया जमा। और जिन्स मुअन्नस और मुअन्नस मुज़क्कर। मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस उल्टा मुजक्कर और मुअन्नस। वसात के एतबार से दो है, मारिफा नकीरा। एराब के एतबार से हालतें तीन है, हालत रफा, हालत नसब और हालत जर। नंबर यानी कि आदत के एतबार से तीन है, वाहिद तस्निया और जमा। जमा। और जिन्स के एतबार से यानी कि जेंडर दो है, मुजक्कर और मुअन्नस। इसके अंदर से मारिफा की तमाम किस्में हमने पढ़ लिए। नकीरा की पहचान क्या है? तनवीन पर तनवीन, आखिरी तनवीन। हर्फ पर दो जबर दो तनवीन जेर, दो जबर दो जेर या दो दो पेश। दो पेश। पेश, ये तनवीन है नकीरा की निशानी। और मारिफा, मारिफा की टोटल 7 किस्में हैं, जिसमें से सबसे पहला है अलिफ लाम वाला, यानी कि मुअर्रब बिल लाम। दूसरा है इसमें जमीर, प्रोनाउंस। तीसरा है इसमें अलम, यानी कि रखा हुआ नाम, प्रॉपर नाउन। उसके बाद है इसमें इशारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हाजा, हाजानी, हाउलाई। इसके बाद है इसमें मौसूला, रिलेटिव प्रोनाउन, अल्लजी, अल्लजीना, अल्लती, अल्लाती। ये तमाम के तमाम इसमें मारिफा है। अब बची दो किस्में, वो है इसमें मुजाफ और इसमें मुनादा। इसमें मुजाफ और मुनादा दोनों सेम है। ऐसा इस्म जिसके ऊपर से अलिफ लाम और तनवीन दोनों का बोझ हटा दिया गया हो, यानी उसको हल्का कर दिया गया हो, उसको ग्रामर में बोलेंगे अखफ किया हुआ इस्म, ना उस पे अलिफ लाम है और ना ही तनवीन है, तो वो हो गया मुजाफ और मुनादा। तो ये इसमें मारिफा की किस्में हैं। उसके बाद एराब। एराब यानी हालतें तीन है, हालत रफा, हालत नसब और हालत हालत जर। जर। हालत रफा यानी कि लास्ट लेटर के ऊपर पेश, एक पेश या दो पेश। हालत नसब यानी कि लास्ट लेटर पर एक जबर या दो जबर। और हालत जर यानी कि लास्ट लेटर के नीचे एक जेर एक या फिर दो जेर। ये तीन हालतें हैं, हालत रफा, नसब और जर। उसके बाद है वाहिद तस्निया जमा। अदद के एतबार से हर एक इस्म वाहिद होता, सिंगल होता, सिंगुलर होता। उसको डुअल बनाने के लिए, प्लूरल बनाने के लिए वही इस्म का, वाहिद इस्म का इस्तेमाल किया जाता। जिसमें से हमने तस्निया के बारे में कल थोड़ा सा हमने पढ़ लिए। किसी भी वाहिद इस्म को तस्निया बनाने के लिए इसके दो नाम है, एक तो तस्निया और दूसरा है मुसन्ना। मुसन्ना वाहिद इस्म को तस्निया बनाने के लिए या मुसन्ना बनाने के लिए वाहिद इस्म के आखिरी में दो हर्फ ऐड करना है, एक अलिफ और दूसरा नून जेर नी। जैसा
کافرن ہے. اس کا تسنیہ بنانا ہے، مثنیٰ بنانا ہے، تو اس کے لیے دو حرف ہم ایڈ کریں گے، الف اور نون زیرنی. یہ بن گیا کافرانی، یعنی کہ دو کافر، اور دو کافر مرد. کافرون سے بنا کافرانی. کافرون ایک مرد کافر، اور کافرانی دو کافر مرد. اب اس کے بعد ہے مذکر اور مؤنث. تو مذکر، ہر ایک اسم مذکر ہوتا، مؤنث ہونے کی کچھ نشانیاں یا کچھ علامتیں ہوتی، جس میں سے آج ہم نے دیکھے کہ مؤنث جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا. سب سے پہلے ایک رہتا حقیقی مؤنث اور دوسرا رہتا علامتی مؤنث. حقیقی مؤنث یعنی کہ ایسی مؤنث، ایسا نام جس کا جوڑا موجود ہے مذکر کی شکل میں، جیسے ماں ہے، باپ، عورت، مرد، ایسے بہت سارے جوڑے ہیں، تو اس کو بولیں گے حقیقی مؤنث. اس کے بعد ہے علامتی مؤنث. تو مؤنث علامتی یعنی کہ ایسا اسم جس کے آخر میں مؤنث کی علامتیں لگی ہوئی ہو. وہ مؤنث کی علامتیں کون سی ہے؟ تین ہیں. کون سی؟ تا مربوطہ ہے، الف مقصورہ ہے، اور الف ممدودہ ہے. یہ دو مؤنث ہے جو مین. پہلا ہے مؤنث حقیقی اور دوسرا ہے مؤنث علامتی. تیسرا ایک آپشن ہے مؤنث سماعی، یعنی کہ ایسا اسم جس کو پہلے سے زبان والوں نے بولتے ہوئے سنے کہ یہ مؤنث ہے، ہم نے مان لیا یہ مؤنث ہے. جیسے شمسن، اس کا بھی لاجک ہے، جس سر نے آپ کو بتایا آگ سے، روشنی سے جو چیزیں بنی ہوئی ہے وہ عرب اس کو مؤنث مانتا. تو بہرحال ہم نے اس کو عرب سے سنے کہ یہ عرب نے مؤنث بتایا، ہم نے مان لیے کہ یہ مؤنث ہے. جی ہاں. اور جو باڈی پارٹس ہے، دو کان ہیں، دو ہاتھ ہے، دو آنکھیں ہیں، دو پیر ہے، تو یہ تمام کے تمام نام مؤنث ہے. ان کو بولیں گے مؤنث سماعی. سماعت یعنی کہ سننا، سماعی یعنی کہ سنا ہوا. تو جو ہم نے سنے، سر نے مثال دی ہے دروازہ کھلتا، بچپن سے سنے ہم نے، اس کو مچھیاں داڑھی مچھی تو ہے نہیں، لیکن ہم نے سنے تو وہ سماعی ہو گیا. کھڑکی کھلتی، ٹرک آتا، کار آتی، تو یہ مؤنث مذکر یہ ہم نے سماعی ہے، سنے ہوئے ہے. تو مؤنث حقیقی، مؤنث علامتی، اور تیسرا ہے مؤنث سماعی. یہ تین ہے مؤنث کی نشانیاں، مؤنث کی قسمیں. علامت کے اندر صرف تین ہیں، تا مربوطہ، الف مقصورہ، اور الف ممدودہ. اب یہ جو تمام کے تمام چیزیں ہیں، اس کا ایک شارٹ کٹ بنایا گیا. ہر ایک اسم کو اس میں دیکھنا ہے، جانچنا ہے، پرکھنا ہے. یہ لیبوریٹری ہے، یہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہر ایک اسم کی. اس کا شارٹ کٹ ہے، فارمولا ہے DING. ڈی یعنی کہ دیکھنا ہے اس کی وسعت کے اعتبار سے وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. اگر معرفہ ہے تو کون سی قسم کا معرفہ ہے. اعراب یعنی کہ حالت کون سی ہے اس کی، حالت رفع ہے، نصب ہے، یا جر ہے. این یعنی کہ نمبر، اس کا عدد دیکھنا ہے، وہ اسم جو ہے وہ واحد ہے، تثنیہ ہے، یا پھر جمع ہے. اور جینڈر یعنی کہ جنس دیکھنا ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اور مؤنث ہے تو پھر مؤنث علامتی ہے، مؤنث حقیقی ہے، مؤنث سماعی ہے. یہ ہے پورا اسم کا خلاصہ. یہ پڑھ لینے کے بعد اسم کا ٹاپک ختم ہو گیا. اور الحمدللہ اس میں سے صرف دو چیزیں باقی ہے، باقی کے تمام چیزیں ہم پڑھ چکے. ایک ہے جمع، اور دوسرا اس میں موصولہ، اور اس میں اشارہ، جو پورے کے پورے ابھی دیکھنا باقی ہے. آج اس میں اشارہ پوری لسٹ آ گئی، نوٹس میں ہے، آپ کو معلوم ہو گیا وہ. اس میں اشارہ اور اس میں موصولہ. ہاں الذی ہے، لیکن الذی اب ایک اسم ہے. صحیح ٹائم پہ صحیح بات، الذی ایک اسم ہے. الذی
یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے اور یہ لفظ سب سے پہلے پہچاننا ہے اسم ہے فعل ہے کہ حرف ہے؟ اسم ہے. اب اسم ہے تو پھر DING ہمارے پاس ایک فارمولا ہے، وہ ہم کو اس میں ہر ایک اسم کو ڈالنا ہے. ڈی یعنی کہ ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ. یہ بولیے معرفہ ہے کہ نکیرہ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ ہے جی، یہ ہے معرفہ. اور معرفہ کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے یہ؟ موصولہ. اس میں اس میں موصولہ. اعرابی اعتبار سے اب یہ اعراب اپنا شو نہیں کرتا. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو غم میں بھی ایک ہی چہرہ شکل ہے، غصے میں بھی ایک ہی ہے، روتے وقت بھی ایک ہی ہے، ہنستے ہوئے بھی ایک ہی ہے. یہ اپنی اعراب شو نہیں کرتا. اس کے ساتھ والے کو دیکھ کے سمجھنا پڑتا کہ انہیں کیا ہے، ابھی بیمار ہے، غصے میں ہے، ٹینشن میں ہے، کیا ہے. اس کے ساتھ والے کو دیکھ کے سمجھنا پڑتا. تو بہرحال یہ اعراب اپنی شو نہیں کرتا. نمبر کے اعتبار سے عدد واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے؟ واحد. واحد ہے، سنگل ہے. اور جینڈر جنس کے اعتبار سے مذکر ہے. اب معرفہ ہے تو اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں موصولہ اور اس میں اشارہ، تمام اسماء موصولہ اور تمام اسماء اشارہ یہ پیدائشی معرفہ ہے، یہ نکیرہ کبھی ہو نہیں سکتے. تو اس کو چھوڑ دو. اعرابی اعتبار سے تو شو کرتا ہی نہیں، ساتھ والے کو دیکھ کے پتہ کرنا پڑتا. نمبر کے اعتبار سے واحد ہے تو اس کا تثنیہ بھی ہو سکتا، جمع بھی ہو سکتا. ہاں تو اس کا جب اللذانی، دیکھو پھر سے تثنیہ بنانے کے لیے کیا نشانی ہے ہمارے پاس؟ آنی. یہ اللذی ہے، الف اور نون زیر نی لگا دو، اللذانی دو. الذین اب مذکر ہے تو مؤنث ہو سکتا. اب اس کا مؤنث کیا ہو جائے گا؟ پھر سے وہی تا مربوطہ یا پھر تا تانیث آ جائیں گی. اللذی کا بن جائے گا التی. التی. ہاں التی تطلع علی الافئدہ. تو یہ ہے مؤنث اور یہ ہے مذکر. تو اس کے بھی واحد بھی ہوتا، تثنیہ بھی ہوتا، جمع بھی ہوتا. مؤنث میں واحد بھی ہوتا، مؤنث میں تثنیہ بھی ہوتا اور مؤنث میں جمع بھی ہوتا. تو اسی لیے میں نے بتایا کہ یہ دو ابھی پورے پڑھنا باقی ہے. تو بہرحال پھر سے ہم واپس چلیں گے. ابھی سر یہاں حاضہ تک بارے میں کہ بتاؤ نا سر ایک بار. جی حاضہ کے بارے میں بتاؤ نا سر. یہ DI ہاضا، یہ ہے ہاضا. اب اس کو پہچانو، یہ اسم ہے فعل ہے کہ حرف ہے؟ اس میں ہے. اسم ہے. اب اسم آ گیا تو پھر ہمارے پاس DIN اور جی. ڈیفینیٹ ہے کہ انڈیفینیٹ ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ اس میں اشارہ. اور اعراب یہ بھی نہیں بتاتا. یہ بھی ڈینجر لوگ ہیں، انہوں بھی اپنی جذبات ظاہر نہیں کرتے. اس کے بعد نمبر، عدد کے اعتبار سے واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ واحد ہے. واحد. اس کے بعد جنس، جینڈر، مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو اب یہ ہاضا ہے، اب اس کو بنانا ہے تثنیہ، تو پھر سے الف نون ہاضانی. آ گیا. اور اس کی مؤنث ہے حاضی. ہاتانے. حاضی. اور تثنیہ مؤنث ہا تانی.
जभी भी आपको एक साउंड सुनाई दिए, आनी 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 आनी, तो आपने समझना है कि ये तस्निया है। लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज भी है जो तस्निया नहीं है, वो एक सिफत है। जैसे फिर मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे अर्रहमानी, तो वो तस्निया नहीं है, वो एक सिफत है, वो बना हुआ ही वैसा है, अर्रहमानी। तो जहां भी आप नाम सुनेंगे, आवाज सुनेंगे, आनी आनी आनी, 100% बताना है कि ये तस्निया है। तो इसमें मौसूला में भी वही है, इसमें इशारा के अंदर भी वही है, और बाकी तमाम इसम के अंदर भी वैसे ही है। तभी ये हो गया हमारा इसमें इशारा। तो ये जो हमारा DING इसम को जांचने का पैमाना है, इसमें किसी को अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, सवाल घर मत लेके जाइए, कोई भी सवाल हो पूछिए। सर इसको उर्दू में कैसे कहेंगे? जी, DING का उर्दू में? DING का उर्दू में, बस वो उर्दू में, तो फिर मैंने वो नाम याद लिखाया, आपको वो बोलना है। आपको शॉर्टकट जब दे रहे तो आप हार्ड चीज की तरफ क्यों जा रहे? आसान है ना, DING मत बोलो, डिंग बोलो, खाली डिंग बोलो, किताबुल लजी। हाँ, ये नहीं, और देखिए कौन सी तरकीब क्या है, ये एक इस्म है ऐसा है। और ये एक इस्म है, दो लफ्ज लिखे हुए हैं। तो पहले हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। फिर से हमारे पास वही, जहां भी जभी भी इसम नजर आए, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, डिंग, DING। पहला वाला जो लफ्ज है उसको भी देखना है DING में। इसम है, पहचान लिया हमने। अब मारिफा है कि नकीरा है? नहीं, दोनों भी नहीं है, मारिफा है, ना अलिफ लाम है और ना तनवीन है, तो या तो मुजाफ है या फिर मुनादा है, अखफ किया हुआ है इसमें। तो ये मारिफा की किस्म में से पहले आ गया मारिफा, ना अलिफ लाम है और ना ही तनवीन है, तो या तो मुनादा होगा या फिर मुजाफ होगा। उसके बाद एराबी एतबार से उसकी हालत कौन सी है? हालत रफा है, क्योंकि लास्ट लेटर पर पेश आ गया। अब नंबर अदद के एतबार से वाहिद है। इंजेक्शन ले रहा हूँ। उसके बाद जिन्स मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है, क्योंकि मुअन्नस की कोई निशानी नहीं है, और ना ही वो हकीकी मुअन्नस है और ना ही वो समाई मुअन्नस है। समाई मुअन्नस उर्दू में है लेकिन अरबी में नहीं है, तो ये हो गया मुजक्कर। अब मारिफा के अंदर इसकी किस्म है अखफ। अब अखफ किया हुआ इसम है, या तो मुनादा होगा या फिर मुजाफ होगा। मुनादा तो नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पहले या है क्या? नहीं नहीं है, तो मुनादा खत्म हो गया। अब वो हो सकता सिर्फ और सिर्फ मुजाफ। अब मुजाफ है तो उसके बाद वाला इस्म, उसका ताल्लुक जोड़ने के लिए, मालिक और मिल्कियत का रिश्ता बनने के लिए, बाद वाला इस्म जो है वो हालत जर में आता। जैसे किताबु हामिदिन, हामिदिन। अब यहां पे है किताबु अल्लजी, तो ये अपना एराब शो नहीं करता, तो यहाँ पे एस्टिमेट, हाँ हाँ, अब यहाँ पे एस्टिमेट करना है, क्योंकि ये अल्लजी के साथ वाला जो है इसको देख के हमको पहचानना है। हाँ, हालत जर है, तो ये दोनों मिलके बन जाता मुरक्कब इजाफी मुजाफ मुजाफ इलैहि का रिश्ता। फिर बीच में आ जाता हमारे पास का, की, के। जिसकी किताब, किताब जो उसकी, इसकी अब आगे बताइए।
اب اس کے آگے ہاں پھر اس کے آگے پھر ایک جو جملہ آئے گا وہ جملے کے اعتبار سے. بہرحال ہم کو صرف اس کا اعراب سمجھنا تھا. تو اعراب خود سے شو نہیں کرتا, یہ ساتھ والا اس کا اعراب ہم کو بتاتا. جی بولیے, اور کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں؟ سر تسنیہ میں اخف ہو سکتا سر, اخف اسم بول سکتے. ماشاء اللہ, اخف ہو سکتا, تسنیہ میں بھی اخف ہو سکتا. کوئی ایک نام بولیے آپ. دو کتابیں حامد کی. کتابن, ایک کتاب یا پھر الکتاب. یہ کتابن کا تسنیہ بنائیے, مثنیٰ, دو کتابیں. کتاب کتاب بانی, بانی. کتابانی, الکتابوں کا الکتابانی, الکتابین, الکتاب الکتابانی. کتابانی. کتابن کو اخف کرنا ہے, ہلکا کرنا ہے, مضاف بنانا ہے یا پھر منادا بنانا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تنوین کا ایک پیج دون ہٹا نکال دیں گے. دیے, ایک پیش ہٹا دیے. اور الکتاب کو اخف کرنا ہے تو ال نکال دیے. تو یہ بھی ہو گیا کتابو, یہ بھی ہو گیا کتابو. الف لام نکال دیے اور تنوین بھی نکال دی. اب کتابانی ہے, اب اس کو اخف کرنا ہے. تو یہ تنوین والا ہے, یہ الف لام والا ہے. تو ہم کو نہ الف لام رکھنا ہے اور نہ تنوین رکھنا ہے. تو پہلے سے ہم نے الف لام تنوین ہٹانا ہے. تو تنوین کے پیچھے کون سا حرف چھپا ہوا ہے؟ نون چھپا ہوا ہے. جو نون الف کے ساتھ کھل کے یہاں پہ آیا تھا وہ نون ہم ہٹا دیں گے. اور الکتابانی میں الف لام اور تنوین دونوں ہٹا دیں گے. کتابا, کتابا یہ ہو گیا اخف کیا ہوا اسم. سیم ہے. کتاب حامدن, حامد کی کتاب ایک. کتابا حامدن, حامد کی دو کتابیں. بہت اچھا سوال ہے. الحمدللہ. چلیے اور کوئی سوال؟ جی تو آج جمعہ ہے, ہفتہ اور اتوار 2 دن کلاس کو چھٹی رہے گی. اب یہ 2 دن کیا کرنا ہے, سوال یہ ہے. تو آپ میں سے کوئی بتائیے کہ 2 دن کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں سر, ٹینشن نہ کو, جان دو, چھوڑو. 5 دن سے تو پڑھ رہے, ریوائز کریے ماشاء اللہ. اور پچھلے ہفتے میں ہوم ورک دیا گیا تھا, 2 ہوم ورک تھے. ایک تو قرآن کریم میں سے اس میں علم ڈھونڈ کے نکالنا تھا, الحمدللہ جو آپ لوگوں نے کیے. اور دوسرا پروناؤنس, ضمائر کا چارٹ بنانا تھا, وہ بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے کیے. اس ہفتے آپ لوگوں کا کیا ہوم ورک دینا آپ کو, آپ خود بتائیے. ریویژن کریے. چلیے اور سر اسماء جنس نکال کے لانا. نہیں, وہ تو بہت سارے ہیں, پھر پریشان ہو جائیں گے. دیکھیے صرف ریویژن. ہاں, ایک آیت ہے, چھوٹا سا ہوم ورک لے لیجئے. ایک آیت ہے, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. یہ
بڑی آیت ہے. 22ویں پارے کے شروعات میں یہ آیت ہے سورہ احزاب کی. جی اس آیت کے اندر پورے کے پورے ناؤن ہے، اسم ہے، اور یہ اسم کو آپ واحد اور تثنیہ بنائیے. یہ ہے آپ کا ہوم ورک. المسلم اس کا تثنیہ بنانا ہے اور اس کا مؤنث بنانا ہے اور تثنیہ بنانا ہے. المسلموں سے کیا بنے گا؟ المسلمانی. المسلمتو سے اصلی المسلمتان المسلمتان. المسلمتانی. المسلمتانی. تو یہ پہلا نام لینے کا ہے المسلمو، اس کا تثنیہ بنانا ہے المسلمانی، پھر اسی کا مؤنث بنانا ہے المسلمتو، پھر المسلمتانی. اس کے بعد ہے المومنو، اس کا بناؤ مؤنث المومنتو، پھر المومنانی المومنتانی. پھر القانتو ہے، پھر اس کا واحد لکھو اور تثنیہ بناؤ. یہ ہے آپ لوگوں کا ہوم ورک. تو آج یہاں پہ رکیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. اور پیر کے دن اور بھی اگر کوئی سوالات ہے آپ کے تو آپ وہ سوالات سوچ کے رکھیے، پیر کے دن انشاءاللہ اس کے جوابات دیں گے. السلام علیکم سر، آیت نمبر بولیے سر سورہ احزاب کی. سورہ احزاب کی آیت نمبر جی پارہ نمبر 22. پارہ نمبر 22 ہے. آیت نمبر ہیلو، وعلیکم السلام. ہاں 35 وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ آیت نمبر 35. 35. 35. 35 ہے کیا؟ جی سر 35 ہے سر. 34. آیت نمبر 35 سر. 35 ہے کیا؟ جی 35 ہے. 35. آیت نمبر 35 سورہ سورہ احزاب. جزاک اللہ خیر کثیر سر. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.